Now, what is types of parameters? Actual parameter and formal parameter. So, what is actual parameter? The parameter which is passed in a function. Which is passed in a function call? Function call. It is called actual parameter, and the parameter passed in function definition is called formal. So this is formal, and this is called Formal parameter. this is called actual. That's it. For example, हमने एक function बनाया, let's add x comma y, and I am writing here return x plus y. So if I am calling a function add 10 comma 50, so here these 10 comma 50 are called actual. And these two are called formal. Parameter. Formal parameter. So now, similarly, what is return value? What is return value? Return value is used whenever you have to return a finished or an intermediate product after a specific processing. आपने कोई काम कर लिया, आपको उसकी final answer return करना है to the calling block, you can use return value. Python could return one or more values in form of tuple. Yes. Okay. The function which are not returning any value are called void functions or Non-fruitful. और जो रिटर्न करते हैं उन्हें हम क्या बोलते हैं? फ्रूटफुल फंक्शन। और हम इसके लिए कौन सा कीवर्ड यूज करते हैं रिटर्न करने के लिए? रिटर्न। तो फंक्शन के कॉन्सेप्ट में अगर आपको एक ब्लॉक से वैल्यू दूसरे ब्लॉक में ट्रांसफर करनी है तो आपके पास दो रास्ते हैं। देयर आर टू वेज। वन इज कॉल्ड अ रिटर्न, okay, one is a parameter passing, right? Look at this code. Here I am passing this en or es or fr. Now fr is going to this value lang, so it is returning, it is passed. So this is a block, this is a driver code. I am calling a function. This block is different than this block, right? There are two different blocks, so I am transferring the value from one block to another block. एक ब्लॉक से दूसरे ब्लॉक में वैल्यू भेजने के लिए हमारे पास दो रास्ते हैं। द फर्स्ट वन इज अ पैरामीटर पासिंग, एक्चुअल पैरामीटर। हियर आई एम पासिंग fr टू lang, तो lang की वैल्यू क्या बन गई? fr बन गई। या फिर अगर ये कॉल होगी तो lang की वैल्यू क्या बन गई? es बन गई। अगर ये कॉल होगी तो lang की वैल्यू क्या बन गई? en, तो दैट मींस en इज असाइंड टू lang। ओके, सो एक्चुअल पैरामीटर इज पास टू फॉर्मल पैरामीटर। ये एक तरीका है पैरामीटर की आप एक ब्लॉक से वैल्यू को दूसरे ब्लॉक में भेजने का। नाउ वंस whatever is the answer, let's say whenever the value is fr, this value is assigned to this variable, and what is condition will be? This condition will be true. If lang double is equals to fr, return bonjour. So the value will be returned. अब ये value कहाँ return होगी? This value will be returned back to this place only. तो सोचो ये greet यहाँ से हट जाएगा and the bonjour will be returned here. So bonjour देवांश. So whatsoever. Similarly, जब यहाँ पर स्पेनियोल होगा, so the value this es will be assigned to lang, तो एक ब्लॉक से वैल्यू दूसरे ब्लॉक में चली गई, and when lang double equal to es, what will be the returned value? Return hello का होला का मतलब है the hola will be returned in the place of greet. So the greet will be removed from this place, and here what will be returned? Hola. So hola muskan. So this is a Spaniel word to greet somebody. So जिस तरह हम लोग इंग्लिश में hello बोलते हैं, that is called hola. So this is the story. So एक ब्लॉक से वैल्यू दूसरे पे भेजने के लिए हमारे पास we have a two ways. One is a parameter passing and another one is a return by returning a value. So we can return multiple values as well. Okay, so this is the story. Now it is not a big issue. Write a function to check whether the number is positive or negative. ये कोई issue नहीं है. How to make this function? ये हमने बनाया function. Okay, so we are accepting the value. Look at this. This is the call. This is the function call, and we are passing this value num to n. और अगर n is greater than 0, so it returns once. Otherwise, it is returning -1. So whatever value is returning, वो वापस कहाँ पर आ जाएगी? यहीं पर आ जाएगी। तो ये रिजल्ट को या तो 1 मिलेगा या फिर -1 मिलेगा। तो अगर 1 मिलेगा तो पॉजिटिव, और अगर -1 मिलेगा तो नेगेटिव। So this is, we can develop our own functions like is prime, is Armstrong, is perfect number. Okay. Something like is palindrome, इस तरह के programs we can make it, that we can make it with the help of this. Okay, if the function is a prime number, then return 1, otherwise return -1. If the function is palindrome, return true, otherwise false. That we can make a boolean type of functions. तो ये function का एक concept जो था मैंने थोड़ा सा explain किया. Now Python में how many ways are there to pass a parameter?
okay, or and assign a value to a parameter. So there are 4 ways to assign a value to a parameters, or you can say a formal parameter. वो क्या है? Positional, default, keyword and variable. There are 4 basically that we can discuss. और भी होंगे लेकिन but I am basically discussing 4 as per our syllabus of class 2. So positional parameter क्या है साहब? Look at this particular code. Look at this particular code and only just focus on the header. Just focus on this header. This header. Okay. How many parameters are there? 2 parameters. Right? Okay. Now look at this function call. Look at this function call. Just only the function call. Okay. We are reading the value of name from the user. We are reading the value of percentage from the user and assigning name comma percent. अभी name किसको जाएगा? The first value will assign to first Name. and the second value will assign नेम to पे second. जाएगा. So this is what Second. positional parameter. The positional parameter में हम या तो hard values पास करते हैं या फिर हम यहाँ पर variables पास करते हैं जिसमें value होती है. Automatically क्या होगा? The first parameter will go to the first and second value go to the second parameter. It means first actual will assign to first formal and second actual parameter value will assign to second formal parameter. Right? Okay. But point is that all the assignment of these 2 parameters are mandatory. It is not like that कि आप यहाँ पर कोई एक पास करें या आप 3 पास कर दें. So this is also wrong. So that means the number of parameters in actual and formal must be same. Number 2, all the parameters, all the formal parameters must be assigned. All the formal parameters must be assigned. It is not like that. Look at the next function call. Look at the next function call. Look at the next function call. What I am doing here? I am assigning the percentage to name, which is not good. It is not good. Logically, it is not correct because further in the given code, अब वो name is less than 0 और percentage की value क्या हो गई? Percentage 75 है. ठीक है ना? Percentage is 75 और वो हम किसको दे रहा है? Name. So print करेगा invalid grade of 75 entered. This is wrong ना? So that means the order is also important. Whenever you are talking about a positional parameters, in positional parameters, order is important. That means the first value should be correct and second should also correct. Now look at the second call. Look at the second call. What is wrong in the second call, sir? What is wrong in the second call? You are assigning only first value, so only name is assigned, but what about the percentage? The percentage is not getting any value, so this is also not allowed. This is also not allowed because it is expecting 2 parameters or 2 values and you are passing only 1. Second and now third. This is also wrong. Again you are missing. So in this case, percent will not go to the second parameter. Percentage is first. From the left, this is the first value. So the first value will go to the first formal parameter. Again, it will be assigned to name, which is, so that what is the problem? This PER will not assign and it is another problem. So all the parameters are mandatory. That means assignment is mandatory. So what is the conclusion? The conclusion is it is used where the sequence of the parameter does matter. Okay, sequence of the parameter. ये sequence नहीं चलेगा. Sequence should be name comma percentage. Okay, this sequence will not follow name comma percentage. Second, now how the values are assigned to the formal parameters from actual. So the first actual value goes to the first formal and second actual goes to second formal and so on. So like this it will happen. So पहली value पहले parameter को, दूसरी value दूसरे parameter को और तीसरी value तीसरे parameter को और so on. ऐसा चलता रहेगा. Okay. So positional parameters are specified before keyword parameter. That will be covered. अभी keyword parameter क्या होता है? Positional का मतलब समझ में आ जाना चाहिए कि जब भी हम कभी function call लिखते हैं और हम यहाँ पर कोई hard value लिख दें या variable का name डाल दें तो ये क्या कहलाएगा? That is positional parameter passing. तो ये positional parameter के थ्रू हम इसको assign कर रहे हैं value. लेकिन हम अगर ऐसे लिख देते हैं student और हमने यहाँ पर लिख दिया sef और यहाँ पर लिख दिया हमने percentage 78.76. ये क्या हुआ? This is hard values. So sef will be assigned to name and 78.76 will assign to PER. So this is also correct. But point is that what is the third point? This third point says the positional parameters are specified before keyword parameter. Yes. What is keyword parameter?
it will be covered in the next slide. Neha, is it clear to you so far? Okay, this is also called mandatory argument. नेहा क्लास में नहीं है क्या, चली गई, लेफ्ट हो गई क्या? Maybe it's okay, no problem. Just rejoin the class. Okay, it's not a problem. Come to the positional parameter. Further, one more example of compound interest. Okay, look at this function call. Is it correct? Is this function call correct? Is this function call correct? Yes, it is correct. Now what I am going to do is here why this is incorrect? Just 1 minute, I am going to check this because maybe it might be disconnected. No problem, I will upload this lecture, don't worry. Look at this. So now look at this particular example. Neha, so yes, so look at this particular example. In case if something happens related to your network, so please at least inform me in the WhatsApp. Okay, please. Yes, nobody actually, I'm not getting any kind of notification that all are left out. sir, I have informed. Acha, okay. The day after. Okay, just now see, just now look at this. Now what is happening here? This is my function call. So what is happening? First, this P amount will assign to principal, second parameter value will go to the second, and third will go to the third. Acha, notice one thing also. This is not mandatory that this variable name must be same as this variable name. No need. In positional parameter, it is not mandatory. It is not mandatory that it is rate and it must also be a rate. No problem. You can take R also. You can take P here. You can take T here. No problem. You can take X, Y, Z also. This is also allowed. My point is that important thing is all the three parameters 1, 2, and 3 should be assigned. Number 1, their order must be correct. That is the second point, and no one should be left over. No one should be left. So it is not like that कि आपने 2 को असाइन किया और 1 को छोड़ दिया, ऐसा नहीं होगा. ठीक है, ध्यान रखिए. और लेफ्ट से असाइनमेंट होता है. So left value will go to the left, middle value go to the middle, and the right side value will go to the right side. Hope so it is clear. Okay. Yes or no? यहाँ तक समझ में आ रहा है? Yes, sir. तो ये क्यों इनवैलिड हो गई? ये क्यों इनवैलिड हो गई? क्योंकि ऑर्डर गलत हो गया. तो जहां रेट होना चाहिए वहां प्रिंसिपल अमाउंट हो गया, जहां प्रिंसिपल अमाउंट हो गया वहां रेट हो गया. ठीक है, हालांकि इतना बड़ा फर्क नहीं पड़ेगा, लेकिन ऑब्वियसली कैलकुलेशन में दिक्कत आएगी. ओके, नाउ दिस इज आल्सो रॉन्ग बिकॉज व्हाट यू आर डूइंग, यू आर असाइनिंग ऑर्डर इज आल्सो रॉन्ग. ओके, यस और नो? Order is wrong or not? Yes. Yeah. Yes, sir. Yeah, in this third call, one is missing, time is missing. So you are assigning first 2, but third you are not assigning. So this is also wrong. Definitely this is wrong. So the positional parameter, final conclusion, order is matter, and the first value will go to the first, second will go to second, and so on. But अगर आपने एक भी छोड़ दिया तो वो unassigned रह जाएगा और error बन जाएगी. Okay, so positional parameters are specified before keyword parameter. Now what is this keyword parameter? We will cover it up over here. Now in positional parameter, it is mandatory that sequence is very important. Sequence is very important. The first value will go to the first formal, second actual will go to second formal, third actual will go to third formal. But in keyword, this compulsion is not there. Look at this. This is the same example. This is the same function calc CI. And this is the same call. This is positional parameter passing. We are passing through the positional parameters, P amount, RT, time, no problem. Okay, first value go to first, second will go to second, and third will go to third, and no problem. But what about this? Look at this. Look at this. This is called keyword parameter. और ध्यान करो, it is in the function call. This is not function definition. This is function call. It is not comma, semicolon. It's not there. It's not colon, कुछ नहीं, body नहीं है. This is a function call. राइट, क्या हो रहा है? नोटिस इसमें क्या चीज ध्यान रखनी है. द फर्स्ट पॉइंट इज ऑर्डर. 1 मिनट, मैं इसको लिख देता हूँ. नाउ कीवर्ड पैरामीटर गिव्स फ्रीडम टू स्पेसिफाई इट एनीवेयर इन द फंक्शन कॉल. यस, यू कैन स्पेसिफाई इट एनीवेयर. इसमें ऑर्डर कोई इशू नहीं करता, लेकिन क्या चीज मैटर करती है? द नेम शुड बी सेम एज ऑफ दिस. प्लीज नोटिस द PRIN शुड बी PRIN. बिकॉज जब आप कॉल में यहाँ वर्ड लिखोगे ना, जो भी वो वर्ड यहाँ सर्च करेगा.
ठीक है, अगर वो वर्ड में स्पेलिंग मिस्टेक हो गई तो फिर एरर हो जाएगी, ठीक है, क्योंकि ऑर्डर नहीं है तो फिर हम स्पेलिंग शुड बी करेक्ट। सो PRIN मतलब PRIN, आपने हेडर में क्या स्पेलिंग दी है वही स्पेलिंग कॉल में होनी चाहिए, राइट। अब यहां देखो मिस्टेक क्या होगी, लुक एट द लास्ट फंक्शन कॉल, लुक एट दिस फंक्शन कॉल, एवरीबॉडी देख रहे हो? हाँ जी, आप देखो आपने क्या किया, ये पोजिशनल से वैल्यू असाइन करी। सो 5000 इज असाइन टू द प्रिंसिपल अमाउंट थ्रू द पोजिशनल, नो प्रॉब्लम। बट लुक एट दिस, आप इसे कीवर्ड के थ्रू वैल्यू दे रहे हो, यानी कि जब भी हम यहाँ पर कोई वर्ड लिखेंगे इक्वल टू वैल्यू लिखेंगे, इट विल बी ट्रीटेड एज कीवर्ड पैरामीटर। अब आपने क्या किया, RT इज इक्वल टू 3.5 लिखा। अभी RT नाम का कोई यहाँ पर कीवर्ड है, यहाँ पर कोई वेरिएबल है क्या? नहीं, यहाँ तो RAT रेट है। दैट्स वाई rate must be this word must be same, right? That's why this is wrong. समझ आ रही है? और यहाँ क्या हुआ? बीच में बार बार नो प्रॉब्लम, नो प्रॉब्लम, नो प्रॉब्लम, वो मैं कवर अप कर दूँ, वो मैं कवर अप कर दूँ। जब ये वीडियो अपलोड कर दूंगा देन द प्रॉब्लम lecture will be uploaded. Time, now what is this time? Time is okay, but because of RT this call is invalid. This call is invalid. Now why this call is invalid? Now look at this, why this call is invalid? यहाँ पे टाइम का नहीं दिया है। हाँ, because this is positional parameter, I am assigning to the principal amount. This is also a positional parameter, I am assigning to a rate. But what about this? Again I am reassigning to the principal amount. ठीक है, कीवर्ड पैरामीटर सही लिखा है, लेकिन एक पैरामीटर को दो बार वैल्यू चली गई और टाइम को वैल्यू नहीं पहुंची, तो टाइम इज स्टिल अनअसाइंड, सो दैट्स व्हाई दिस इज इनकरेक्ट। समझ आ रही है चीज? ओके, यहाँ क्या मिस्टेक है, यहाँ क्या मिस्टेक है, ऑल दी पोजिशनल पैरामीटर्स मस्ट कम बिफोर कीवर्ड। सो यहाँ कीवर्ड पहले आ गया और पोजिशनल बाद में आ रहा है। पोजिशनल अब समझ में आ गया को व्हाट इज पोजिशनल? पोजिशनल मतलब जब हम वेरिएबल नेम लिख दें या उसकी वैल्यू लिख दें तो वो क्या कहलाता है? पोजिशनल कहलाता है। दिस पोजिशनल इज गिवन बिफोर आफ्टर द कीवर्ड, इट्स नॉट अलाउड। यानी रेट पहले होना चाहिए, टाइम इक्वल टू बाद में होना चाहिए। इज इट क्लियर नाउ? दैट्स व्हाई इट इज इनवैलिड। यहाँ क्या हो रहा है, यहाँ सब कुछ वैलिड है, सब तीनों को वैल्यू पहुंच रही है, और ये जो TIM टाइम है ये स्पेलिंग मैच कर रही है, PRIN की स्पेलिंग प्रिंसिपल से मैच कर गई, तो प्रिंसिपल विल गेट द वैल्यू एंड RAT रेट विल गेट द वैल्यू 3। इज इट क्लियर? सो द फर्स्ट कॉल इज करेक्ट बट अदर रेस्ट ऑफ द कॉल्स आर इनकरेक्ट। So what is the final conclusion of keyword? So the keyword parameter gives freedom to specify it anywhere in the function call. हाँ, जैसे हम लिख रहे हैं यहाँ पर, कहीं पर भी लिखो, कहीं पर भी लिखो, कहीं प्रॉब्लम नहीं है, but always after positional। और आपने यहाँ पर लिखने की कोशिश करी थी, positional से पहले लिख दिया, एरर आ गई। Okay, now second call. Unlike positional and default parameters, in keyword parameter sequence does not matter. That has already been explained. Now its a name must be same as a parameter name in the function definition header. ये पॉइंट है, ये वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट, बिकॉज ऑफ जिसकी वजह से ये वाली कॉल इनवैलिड, ये वाली कॉल जो थी हमारी रॉन्ग हो गई। कौन सी वाली? ये वाली कॉल। लुक एट दिस, ये RAT रेट ये कीवर्ड पैरामीटर होगा, तो ये वर्ड शुड बी मैच्ड विद दिस, विद समवेयर इन द वर्ड। अभी तो मैच तो किसी से नहीं कर रहा ना, अल्टीमेटली आंसर क्या होगा? गलत हो गया। सो द नेम इन द फंक्शन कॉल, the variable name in the function call or parameter name in the function call must match with the parameter name in the function definition, which is not matching, that's why it is. So hopefully it is clear what is keyword parameters. So clear हो गए यहाँ तक आकर के? Yes or no? Yes sir। Yes sir। तो यहाँ तक हमने पढ़ लिया, but do not bother about this ये connectivity problem, rejoin कर लो, because once the lecture will be over मैं upload कर दूंगा इसको। Don't worry. Now what is default parameters? Sometimes it necessary कि हमको वैल्यू नहीं पास करना है, हम चाहते हैं कि अगर हम वैल्यू ना पास करें तो ऑटोमेटिकली कुछ उससे डिफॉल्ट वैल्यू मिल जाए, जैसे स्टेप में होता है, रेंज फंक्शन में होता है, जैसे और बहुत सारे फंक्शंस में होता है। हम जब स्पेसिफाई नहीं करते तो उसको डिफॉल्ट वैल्यू मिलती है। तो हाउ टू असाइन अ डिफॉल्ट वैल्यू टू द वेरिएबल्स? इन ऑर्डर टू डू दैट आपको क्या करना पड़ेगा, जिस पैरामीटर को आप डिफॉल्ट वैल्यू देना चाहते हैं, यू हैव टू असाइन इट to the right side in the function definition header, और आप उसे डिफॉल्ट वैल्यू दे दो। मैंने इसे डिफॉल्ट दिया, अभी देखो, तो डिफॉल्ट पैरामीटर इज स्पेसिफाइड इन द फंक्शन कॉल in the function definition header, not function call, in the extreme right side। अच्छा, ठीक है, तो हमने राइट साइड में दिया। तो गेट फर्दर कॉल्स, इसको देखो, ये ऑर्डर जरूर सही नहीं है बट इट्स ओके, नो प्रॉब्लम। लुक एट दिस, दिस इज ऑल्सो अ डिफॉल्ट पैरामीटर। तो नोटिस करो, दिस इज नॉट कीवर्ड पैरामीटर, ये फंक्शन डेफिनेशन हेडर है। बहुत से स्टूडेंट्स माइट बी कंफ्यूज्ड
Sir, okay, parameter name and equal to value is a keyword parameter. No, if it is in a function call, yes, it is keyword parameter. But if it is in a function definition header, this is the default parameter. Okay, and I will let you know how to do this. And it is very, very important in terms of board exams. Very, very important, because you have to you have to write the output. The codes will be given to you in the examination, and you have to write the corresponding output, the correct output, right? तो अब आपको लॉजिक्स पता होंगे, इनकी कॉल्स पता होंगी, इनका कॉन्सेप्ट पता होगा, then only you can answer properly, otherwise it will be difficult. So it makes a parameter passing optional. ठीक है भाई, optional कैसे, अब देखो ना, ये कॉल है, right? This is the call. Okay, this is the call. Just one minute. This is the call. अभी आप नोटिस करो, ये कॉल देखो, कॉल नंबर 2 देखो आप, राइट? अब आपने इसमें क्या किया, दिस इज अ पोजिशनल पैरामीटर, दिस इज ऑल्सो अ पोजिशनल पैरामीटर, सो दिस वैल्यू गोज टू प्रिंट and this 2 will go to rate, no problem. But what about the time? Rate. The time will The get time का default value है. time will, that means so that means 10,000 2,5. This is the default. So if you are not specifying, that means if the user will not specify, then the default value will be. But if we are specifying, look at the first function call. Now we are specifying, then 7 will be the final value. 5 will not come. So 10,000, 2, 7. So time will get 7. But जब हम specify नहीं करेंगे, तब default value जो specify होगी तो आ जाएगी, और अगर नहीं होगी तो error आ जाएगा, क्योंकि सबको value पहुंचना जरूरी है, right? Look at this call. Look at this call. इस कॉल को देखो, क्वेश्चन नंबर बी में सेकंड वाली, अभी क्या हो रहा है, 2500 किसको मिलेगा, प्रिंसिपल को, Principal व्हाट द रेट विल गेट 3 default value है, time को मिलेगी 5. क्लियर, यहाँ तक क्लियर हो गया? सो दिस इज व्हाट द डिफॉल्ट. Yes sir. नेहा, इज इट क्लियर टू यू? Yes, sir. However, if we pass a value to value of a default parameter, then this value would override default. यही मैंने बताया कि अगर आपने वैल्यू यहाँ दे दी है, जैसे इनके 7 आपने असाइन की है, यहाँ पर आपने असाइन की है 5 असाइन की है, so the final value will be yours. But if you are not specifying, then the default value will take the preference. So the default value will. So to make any parameter default, this is the final last point. अब कोई कहता है कि नहीं सर, मुझे तो प्रिंसिपल अमाउंट को डिफॉल्ट बनाना था, कि अगर सर कोई प्रिंसिपल अमाउंट पे स्पेसिफाई ना करे वैल्यू, तो प्रिंसिपल अमाउंट को ना 1000 मिल जाए डिफॉल्ट वैल्यू. इन केस प्रिंसिपल को डिफॉल्ट बनाना है, सिर्फ प्रिंसिपल को बनाना है इन 3 में, सो प्रिंसिपल शुड बी ऑन द राइट साइड. लेकिन कोई कहता है कि नहीं सर, प्रिंसिपल को तो मैं बीच में ही रखना चाहता, मैं तो उसको बिगिनिंग में रखना चाहता हूँ, और शुड बी ऑन द एक्सट्रीम लेफ्ट साइड. तो फिर उसके लिए मैंडेटरी है कि उसके राइट साइड में जितने पैरामीटर्स होंगे वो सारे डिफॉल्ट होना चाहिए, और अगर वो भी नहीं एक्सेप्ट है तो फिर एरर आएगी. फंडा क्लियर? यहाँ तक समझ में आ गया? ओके, जस्ट होल्ड ऑन फॉर अ सेकंड. अरे अभी रुको, अभी तुम लोगों को ना इसमें एक एक्सरसाइज करेंगे भाई, ऐसा मजा थोड़ी आएगा, छोटे से एक्सरसाइज. ओके, 1 मिनट प्लीज, जस्ट 1 मिनट. सैंपल पेपर्स में आओ, क्वेश्चन पेपर, बोर्ड का क्वेश्चन पेपर है. ओके, हाँ, डोंट टेक इट लाइटली, दीदीज एंड भैयास. ओके, जस्ट होल्ड ऑन फॉर अ सेकेंड. ये बोर्ड एग्जाम का क्वेश्चन है, ठीक है? ये देखो क्वेश्चन आ गया. हाँ, ये आया क्वेश्चन नंबर ई. नाउ टेल मी, नाउ यू टेल मी, वेयर इज द, just 1 minute. 1 minute, 1 minute. Let me take this. Okay, look at this. Look at this question. Please tell me what is the output now. इस कोड का आउटपुट कौन बताएगा? Look at the call. I am just showing the call also. Hold on, I am going to show you the call. I am going to show you the call. Find 49, find 5. That I am going to write here. I am going to write here. Don't worry. I am going to write here. Find without parameter. Find 49 and find 5. Please let me know what is the answer of this. Please let me know what is the answer of this. Tell me. Just hold on. Hold on. What is the value of L and M? Please tell me. What is the value of L? 4 and 9. अयो, first call पे.
फर्स्ट कॉल 5 and 2 क्योंकि आपने जब स्पेसिफाई नहीं करी और दोनों Yes, sir, डिफॉल्ट yes, है, दोनों डिफॉल्ट है, 5 and 2. 5 plus 2 that will become 7, so this will value become 7. अभी तो होल्ड ऑन ना, m is equals to m plus 2, m is equal to m plus 2, so So m will become 4, so print lm, so answer will be 7 space 4, not comma, space 4. Okay, now 4 9 4 9, अब बताओ 4 9 पे क्या आंसर आएगा? so 13 Now because 11. now the point is that, just hold on, now point is that the point is that कि आपने जब अपनी वैल्यू स्पेसिफाई कर दी तो डिफॉल्ट वैल्यू को नहीं लेगा, ध्यान रखो एवरीबॉडी आपने स्पेसिफाई कर दिया ना एल की वैल्यू को 4, तो फर्स्ट वैल्यू गो टू द एल and the second value go to the m, so the first value is become 4, second will become 9 plus 4 become 13, so l become 13 and m become plus 2 11, so answer is 13 and 11. 13 and 13 and 11. okay. Now the third call, The same answer. third call same answer, The 5 same आपने पास कर दिया और 2, So 7 or 4. 7 और 4, 7, 4. फंडा क्लियर Yes, sir. हाँ Yes. yes सर यहाँ पे सर जो प्रिंट एल कॉमा एम लिखा हो, मतलब सर यहाँ पे एंड की वैल्यू स्लैश एन होगी तो 7 और नेक्स्ट लाइन में 4 प्रिंट होना चाहिए था। नहीं, बिल्कुल नहीं होगा, एंड तो मैसेज के बाद आता है, पूरा मैसेज दो स्टेटमेंट का मैसेज है, तो पहले एल प्रिंट होगा, फिर एम प्रिंट होगा, फिर स्लैश एन लगेगा, इन दोनों के बीच में सेपरेटर आता है, तुम एंड को सेपरेटर से कंफ्यूज हो रहे हो, सेपरेटर है, इनके बीच में सेपरेटर की वैल्यू डिफॉल्ट स्पेस होती है, तो इन दोनों के बीच में स्पेस आएगा, ठीक है, और ये पूरा मैसेज एक माना जाएगा, उसके बाद स्लैश एन, समझ आया? हाँ, तो द आंसर विल बी दिस इज योर आंसर, इज इट क्लियर नाउ? Yes, sir. Yes, sir. हाँ, तो आगे चलते हैं, ठीक है, बहुत आगे नहीं जाएंगे, थोड़ा आगे जाएंगे, तो दिस इज व्हाट द मैं कर लिया, मैं साथ में एक्सरसाइज भी करा रहा हूँ ताकि आपको जो है कॉन्सेप्ट भी क्लियर होता जाए। अब हम आगे जाएंगे, मेरा टेंटेड एंड रिकॉर्ड हो गया, ठीक है, नाउ ये देखो कितना खतरनाक क्वेश्चन है ना, राइट? फर्स्ट ऑफ ऑल टेल मी द फ्लो ऑफ एग्जीक्यूशन। अयो सर, फ्लो ऑफ एग्जीक्यूशन पूछ रहे हैं सर, इट्स वेरी डिफिकल्ट सर जी, हाउ टू राइट, टेल मी व्हाट इज द फ्लो ऑफ एग्जीक्यूशन। So 1, लेट मी one, अमृता बताइए, हाँ बताओ। 1 देन so 2, हाँ देन so 3, देन 9, वेरी गुड, देन 10, गुड 3, गुड 4, हाँ 5, हाँ 6, ठीक है, 7, और 8 8 के बाद and 11. 8 के बाद हम रिटर्न कहाँ करेंगे? नहीं हो, 8 के बाद वैल्यू किस पर रिटर्न होगी? जहाँ से कॉल आई थी, अच्छा, हाँ, yes sir. 10 10, और 10 के बाद 11. वेरी गुड, थैंक यू वेरी मच, ठीक है ना? अब इस कोड का स्क्रीनशॉट लो एंड यू हैव टू फाइंड आउट द आउटपुट ऑन योर ओन, आई विल नॉट लेट यू नो द व्हाट इज द आउटपुट बिकॉज यू शुड नो, स्कोप पढ़ाया है तुमको, ठीक है, स्कोप पढ़ाया है अभी, और अभी एक्सरसाइज करा रहे हैं और कराई भी एक्सरसाइज, इट्स नॉट लाइक दैट। स्क्रीनशॉट लो और मैं बाद में पूछूंगा कि क्या आंसर क्या है, कल पूछता हूँ, ठीक है? चले आगे। यस ओके, यस सर। why is it clear the screen? You okay now? Okay, so this is clear to all of you. Now what is this? Is it correct or incorrect? Is it working? नो सर, ये incorrect है। यहाँ पे रेट This को value 2 बार go to वैल्यू this, this value go to this, रेट की वैल्यू 2 बार असाइन कर दी गई, और रेट की वैल्यू 2 बार असाइन हुई और टाइम को वैल्यू नहीं मिली, that's why The time को वैल्यू नहीं मिली। एरर आएगी। है। तो ये हो गया, हमने पढ़ लिया यहाँ तक आकर के, ये छोड़ दो, ये क्वेश्चन आपके लिए होमवर्क है, आपको खुद करना है, ठीक है? ये मैंने हालांकि आपसे पूछ लिया था, और इसमें इसकी हेडर में क्या करेक्शन करना है, दैट यू हैव टू फाइंड आउट, राइट? रीराइट द फॉलोइंग फंक्शन डेफिनेशन इन सच अ वे दैट इफ द यूजर पासेस only name, then automatically message will be how do you do, okay? But if the user passes name and the message, then his corresponding message should come. क्या करेक्शन करना होगा इसमें? सर मैसेज को डिफॉल्ट वैल्यू वेरी गुड, मैसेज की डिफॉल्ट वैल्यू करनी होगी how do you do, how do you do, गुड, वेरी गुड, और फिर ये कॉल कंप्लीट होगी। थैंक यू वेरी मच, आगे चलो।
सो यहाँ पे आके हमने इसको पढ़ लिया। ओके, फंक्शन स्कोप हमने पढ़ लिया। हाँ, फंक्शन का स्कोप हमने पढ़ा और हमने क्या क्या पढ़ा, टाइप्स ऑफ स्कोप। यहाँ तक आकर के हमने कुछ कॉन्सेप्ट्स क्लियर किए, राइट। ओके, लोकल स्कोप और ग्लोबल स्कोप, और हम कल ग्लोबल्स पढ़ चुके थे, तो आज हम फिर से रिवीजन कर रहे हैं, क्रॉस वेरीफाई कर रहे हैं कि हमने कल क्या पढ़ा था और हमें क्या चीजें ऐसी लगनी जो हम पहली बार पढ़ रहे हैं। दिस इज व्हाट द प्रॉब्लम इज, whenever we are not revising the concepts, then slowly it will be washed out from the mind. Okay, this is my code. Now let me ask, what is local variable? What is local variable? Sir, B Sorry, B or C. B and C are the local equal to variables. boy. Now what is the definition of the local scope so that everybody can understand, anybody from the boys? The variable passed in a function is called a local scope. Variable Very defined good. inside a function have local scope. Very good. I'm sure. Variable defined or object defined inside the function's body is called a local variable, and its scope, its lifetime is up to that function's body. Outside that body, that variable is not accessible and it will raise error. So C and B are defined inside the greet and do sum respectively. तो greet के बाहर अगर आपने C को एक्सेस किया, अगर मैं यहाँ लिख दूं print C, so it will show me an error, या मैं लिख देता हूँ print B, तो भी मुझे error आएगा। Is it clear? Yes or no? Yes, sir. Yes sir. तो फाइनली अगर मैंने ये प्रिंट नहीं लिखा है और मैं आपसे पूछता हूँ कि इसका आंसर क्या आएगा, तो प्लीज मुझे बताइए कि आंसर क्या आएगा। इनसाइड डू सम, साइड डू सम में 20 आएगा, हाँ, आउटसाइड #1 में 10 आएगा, 10 आएगा, और हेलो बॉय हेलो में boy, Boy. और आउटसाइड में, आउटसाइड में 2 10 10 आएगा। हाँ ठीक है, गुड, ठीक है, ओके। नाउ अभी ध्यान से देखो, ये वेरिएबल्स डिफरेंट है, ए बी और सी। नाउ लुक एट द नेक्स्ट कॉल। अयो नेक्स्ट कॉल देखो जी, अयो a इक्वल टू 10 एंड a इक्वल टू 20, अयो एंड a इक्वल टू, हाँ, The local मैंने इसमें कौन सा variable. कॉन्सेप्ट पढ़ाया था, कौन सा कॉन्सेप्ट है, कैसे इसे ढूंढता है, कैसे 20, हाँ, वेरी गुड। This is called LEGB rule, which is not specified in this slide. LEGB stands for local, enclosed, ग्लोबल global and built-in. Now what is the meaning of this? It means कि जब कोई वेरिएबल उसके पास आता है या उसको मिलता है, जैसे ए मिला उसको, तो वो सबसे पहले उसको अपने लोकल स्कोप में ढूंढेगा, यानी बॉडी में ढूंढेगा। अगर उसको वो वेरिएबल उसकी बॉडी में मिल जाएगा तो वो उसको एक्सेस करेगा और अकॉर्डिंगली ऑपरेशन परफॉर्म करेगा। बट अगर वो वेरिएबल उसको अपनी लोकल बॉडी में नहीं मिलेगा तो वो उसको एनक्लोज्ड स्कोप में ढूंढता है। एनक्लोज स्कोप बोलते हैं नेस्टेड फंक्शन के स्कोप को। दिस इज नॉट अ पार्ट इन योर सिलेबस, लेकिन मैं ये पढ़ाऊंगा अलग से आप लोगों को, नेस्टेड फंक्शंस और क्लोजर प्रॉपर्टीज, ये सब चीज़ें मैं भी पढ़ाऊंगा, कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन बाद में पढ़ाऊंगा, अभी नहीं। पहले तो जो सिलेबस है हम उसको पहले कवर करेंगे, पहले फोकस सिलेबस पे, ठीक है। तो एनक्लोज स्कोप होता है, उसको उसमें ढूंढता है, अगर उसमें नहीं मिलेगा तो फिर वो ग्लोबल में ढूंढेगा, अगर उसे ग्लोबल वेरिएबल में भी नहीं मिलेगा तो फिर वो बिल्ट इन में ढूंढता है, अगर उसे बिल्ट इन में भी नहीं मिलेगा तो फिर वो एरर देता है कि नेम एरर, सो एंड सो नेम इज अनडिफाइंड और नॉट डिफाइंड, ऐसे करके आपको आता है ना एरर कि आपने कोई वेरिएबल एक्स डिक्लेयर नहीं किया और आपने उसमें वैल्यू नहीं असाइन किया, आप प्रिंट एक्स करोगे तो आपको एरर आएगी ही नहीं आएगी। तो वो सबसे पहले एक्स को कहाँ ढूंढ रहा था, लोकल में, फिर उसको एनक्लोज में ढूंढ रहा था, फिर उसने उसे ग्लोबल में ढूंढा, फिर उसने बिल्ट इन में ढूंढा। जब उसको चारों जगह पे नहीं मिला, चारों स्कोप्स में नहीं मिला, तो उसने फिर आपको क्या फ्लैश किया, एरर फ्लैश किया कि वो कहीं नहीं है, इट्स नॉट, इट इज अनडिफाइंड, नो वेयर इट इज डिफाइंड। फंडा क्लियर? अब यहाँ पर अच्छा, तो जब हमें ये लोकल में मिल जाएगा तो लोकल की प्रेफरेंस को मिलेगा, तो लोकल इसका आंसर आएगा 20। और यहाँ पर क्योंकि हम बाहर हैं, आउटसाइड द डू सम है, आउटसाइड में कौन सा वेरिएबल डिफाइन है, ग्लोबल है, 10, इसका आंसर 10 आएगा। फिर हम ग्रीट की कॉल पे जाएंगे, यहाँ पर ग्रीट की कॉल आएगी, ग्रीट हमको अंदर ले जाएगा, और जब हम अंदर जाएंगे तो a इज इक्वल्स टू बॉय मिलेगा। मतलब ये समझ लो एक ही नाम के दो बंदे, एक के पास 20 रुपए हैं और एक के पास एक स्लिप है जिसमें बॉय लिखा है, तो दो अलग अलग घर हैं, डूसम एक अलग होम है और ग्रीट एक अलग होम है। अब जब हम डूसम घर में जाएंगे तो जब हम ए से बात करेंगे तो वो हमें 20 रुपीज हमें मिलेगा, लेकिन अगर हम ग्रीट के घर में जाएंगे, ग्रीट नाम के घर में जाएंगे तो और हम उसमें ए से बात करेंगे कि स्टूडेंट, तो वो मुझे एक स्लिप दे देगा जिसमें बॉय लिखा होगा। दैट्स अ सिंपल स्टोरी। लेकिन जब हम दोनों घरों से बाहर आ जाएंगे और ए लिखेंगे तो जो बाहर
जो कोई वेरिएबल होगा या जो भी बंदा होगा, बाहर भी एक बंदा है जिसका नाम ए है, उसके पास 10 है, ही विल गिव मी अ 10. दैट इज अ स्टोरी. ठीक है, मैंने एक अपनी तरफ से एक स्टोरी फॉर्म करी है ताकि तुम्हें जल्दी से समझ में आ सके. तो फाइनली इसका आंसर क्या आएगा, ये देखो. इसका आंसर समझ में आ गया सबको? क्या आएगा बताओ. इधर क्या आएगा, 10 के 20. इधर क्या आएगा, 20. इधर 10. इधर बॉय, Boy. इधर 10. अंडर. क्लियर है? ओके, तो लेट्स मूव. फिर यहाँ पर आ गए हम यहाँ पर. ओके, अब ये क्या है, यही सब स्कोप के क्वेश्चंस हैं. अब हम इसका फ्लो ऑफ एक्सक्यूशन भी कल हमने पूछा था, याद है तुम लोगों को? Yes, sir. Yes. ठीक है, आज फिर पूछेंगे फ्लो ऑफ एक्सक्यूशन. श्रेष्ठ है यहाँ पर, श्रेष्ठ क्लास में नहीं है. अभय राज है होने यार क्लास में. चलो कोई बात नहीं, कोई भी बता दो. Sir, पहले may I? The 1, में आई 2, हम्म 5, हम्म 2, 3, 4 और 6. and 6. गुड. ठीक है, इस तरह से चलेगा. इसका आंसर क्या आएगा अमृता? Sir, local A 20. लोकल ए, Global A में ग्लोबल ए, और Global A 10. 10. ग्लोबल ए 10. 10. हाँ ठीक है. हाँ ओके, थैंक यू. Yes, sir. व्हाट इज द आउटपुट ऑफ दिस? नाउ अमृता तुम मत बताओ, नेक्स्ट समबडी एल्स. किससे पूछूंगा? देयर आर सो मेनी स्टूडेंट. वैष्णवी, हाँ वैष्णवी तुम बताओ. वैष्णवी तुम बताओ. सर पहले डेफ चलेगा, फिर इसके बाद इक्वल टू 30, फिर गुड में फंक्शन की कॉल है 1 तो 2 3 4 5. फ्लो ऑफ एक्सक्यूशन बताओ उसका. सर 1 3 4 1 1 2 3 4 1 2 फिर 1 2 5 1 2 5. 5 1 3 4 कॉल आई, 4 से हम कॉल पे इसकी हेड पे गए, 1 और 2, और 2 के बाद फिर हम वापस आ गए 5 पे. गुड. 5. इसका आउटपुट क्या आएगा? लोकल ए में ग्लोबल वाला प्रिंट हो जाएगा 10. लोकल 30 ए, आएगा. लोकल ए भी 30 30. और ग्लोबल ए भी 30. ग्लोबल ए में भी 30. हाँ, सबको समझ में आ गया क्यों 30 आया? क्योंकि जब उसको लोकल में नहीं मिला ए तो उसने ग्लोबल में ढूंढा, उसको ग्लोबल में मिल गया ए तो उसने ग्लोबल की वैल्यू प्रिंट कर दी यहाँ पर 30. इज इट क्लियर नाउ? एरर नहीं आएगा. होप सो इट इज क्लियर. Okay, so likewise you can get the output of this particular question also, how the output will behave. Here the local will print 20, global will print 20 and global will 30. हाँ जी, local A 20 and global A 30. 30. ठीक है, सिंपल है. नेक्स्ट एक्सरसाइज या जी बताइए क्या होगा इसमें? लोकल बी Local B में ग्लोबल में 30 आएगा. सर 30 आएगा. ओके गुड. लोकल बी और ग्लोबल ए में 20 आएगा. इधर 20 नीचे वाली आएगा, इधर में भी 20. इधर 30. 20 बी की वैल्यू आ गई, और ए की वैल्यू आएगा. कितनी? 30. बी की वैल्यू 30. Yes. Yes, sir. ए की वैल्यू प्रिंट होगी ना बेटा? ए की वैल्यू yes. कितनी है? 30 प्रिंट होगा. और यहाँ पर ए की वैल्यू Yes. कितनी प्रिंट होगी? Sir, 30. 30 आएगा. अच्छा, अब आते हैं इस Yes. क्वेश्चन पे. ठीक है, अच्छा यहाँ पे पहुंचेंगे. सबसे पहले कॉल, मतलब 1 फिर 2 फिर 3. यहाँ से पहुंचे कॉल पे. ये एक्चुअली सेमी कॉलन नहीं, यहाँ पर कॉलन्स नहीं है, ध्यान रखना. दिस कॉलन्स आर नॉट देयर, प्लीज रिमेंबर. हाँ, कहीं पर कॉलन नहीं है, दीज आर द कॉल्स ओनली, बट इट वाज कॉपीड मे बी दैट टाइम्स वाज प्रिंटिंग मिस्टेक. सो डू सम पे हम यहाँ पहुंचेंगे एंड देन बी विल प्रिंट कितना आएगा? बी की वैल्यू 20. 20 ग्लोबल 20 Global 30. ग्लोबल ए 30. 50. इसको देखना, बस इसको देखना. बी की वैल्यू कितनी? 20. लोकल में मिल गई. ए की 20. वैल्यू कितनी? बाहर मिली 30. और लोकल प्लस ग्लोबल कितना आएगा? 50. 50. लोकल प्लस ग्लोबल 50 आएगा. 50 आएगा. अच्छा, उसके बाद हम बाहर आएंगे. ग्लोबल है, Global A अब जगह जगह 30. ग्लोबल 30 आएगा. Local plus global is equal to 60. ये कितना है? Error नहीं आएगी, 60 आएगी. अरे error रुको, आएगी. रुको, एरर आएगी. अरे रुको. ग्लोबल ए कितना आएगा? 30.
30 और अब मुझे एक 30 बात आएगा। बताओ, ठीक है, जो ये कह रहा है, एक मिनट, जो ये कह रहा है कि एरर नहीं आएगी, जरा उससे पूछो, ये बताओ बी कहाँ डिफाइन है ग्लोबल लेवल पर? बी डिफाइन है ग्लोबल लेवल पे? अब यहाँ फैक्ट क्लियर कर लो, एक फैक्ट क्लियर कर लो। No, sir. Once the Error. function is, हाँ, listen, when the function's body is completed, when the execution is over, then all the variables will be destroyed. Okay, so its memory location will be removed. उसकी मेमोरी कंप्लीट खत्म हो जाती है। तो अल्टीमेटली बी विल नॉट बी इन द मेमोरी, क्योंकि ग्लोबल में कोई बी नहीं है, लोकल में था, वो लोकल तो खत्म हो गया। तो जब लोकल खत्म हो गया तो उसके वेरिएबल भी डिस्ट्रॉय हो गए। तो दैट लाइन इज गोइंग टू रेज एन एरर। कौन सी एरर? अनडिफाइंड सिंबल बी। समझ आई? हाँ, इज इट क्लियर और नॉट? सो द इतना आउटपुट तो आपको दिखाना पड़ेगा, इतना आउटपुट तो आपको दिखाना पड़ेगा कि इधर तक तो चलेगा, क्योंकि इंटरप्रेटर है ना। लास्ट लाइन पे आप एरर दिखाएंगे बस। इज इट क्लियर नाउ? Yes, sir. हाँ, तो यहाँ तक आकर के हमने क्या पढ़ लिया, कैसे लोकल, सबको समझ में आ गया जो मैंने अभी तक एक्सप्लेन किया? एक तरह से समझ लो मैंने रिवीजन करा दिया सारे पैरामीटर्स पासिंग का और उसका, ठीक है। अब यहाँ पर एक क्वेश्चन आता है, इफ वी वांट टू एक्सेस बोथ वेरिएबल्स लोकल एंड ग्लोबल साइमल्टेनियसली, अब क्या होगा? और दोनों का नाम सेम है। अभी तो पिछली वाली स्लाइड में दोनों का नाम डिफरेंट था, तो कोई प्रॉब्लम नहीं थी, a + b चल रहा था, अंदर आ गया था, कोई इशू नहीं था। यहाँ देखो ना, ये क्या था, यहाँ पर देखो, ये ठीक है, लोकल प्लस ग्लोबल, b + a, कोई प्रॉब्लम नहीं है। b है डिफरेंट है, a डिफरेंट, नेम्स आर डिफरेंट, सो नो प्रॉब्लम। बट व्हाट हैपेंड इफ द नेम्स आर सेम इन द नेक्स्ट स्लाइड? लुक एट द नेक्स्ट स्लाइड, ये देखो, यहाँ पर नेक्स्ट स्लाइड में इसका सेम है, नेम सेम है, a। तो अगर आप लोकल से a लिखते हो तो आपको 20 मिलेगा, आप ग्लोबल a लिखोगे तो भी आपको 20 मिलेगा, बिकॉज लोकल और ग्लोबल लिखने से फर्क नहीं पड़ेगा। पॉइंट इज दैट कि इट विल फर्स्ट ऑफ ऑल फाइंड आउट इनसाइड द लोकल स्कोप, and if it is available in the L means local scope, तो and it will not go to the E or G or B, it will never go to that particular places। को मिल गया यहाँ पर लोकल में 20 मिल गया, तो ग्लोबल की वैल्यू भी 20 और लोकल की भी 20, और 20 + 20 will give you 40। okay, now the question is that sir I want to access this value 30 and how would I access it? और आप, मैंने आपको ये कल पढ़ाया भी था। हाँ, Globals. obviously we have to use globals। जिस वेरिएबल को एक्सेस करना चाहते हैं हम, उसके लिए हम लिखते हैं ग्लोबल्स फंक्शन एंड these two square brackets and the name of the global variable। यहाँ पर name of the global variable वो लिखना पड़ता है, and you can access it in any variable p q r s t, जिसमें भी चाहो वो वैल्यू आ जाएगी। कहाँ पर? यहाँ पर। तो बजाय आप a + a लिखने के, या अगर आप ग्लोबल एक्सेस करना चाह रहे थे तो आपको लिखना चाहिए था, यहाँ पर आपको लिखना चाहिए था ग्लोबल्स इन ब्रैकेट और यहाँ पर कोट्स के अंदर। तो ये अल्टीमेटली क्या होता, और फिर ब्रैकेट बंद कर देते आप, तो ये चलता। ये मैंने इसको हटा दिया यहाँ से, इस तरह से काम कर, तो ये चलेगा। लुक एट द नेक्स्ट कोड, लुक एट दिस कोड, सेम कोड, एब्सोल्युटली सेम कोड, राइट, एक्सेप्ट मैं इसकी सिर्फ आईडी भी साथ में प्रिंट कर रहा हूँ ताकि किसी तरह का कोई कंफ्यूजन ना रहे। एक ही वैल्यू 30 है, दिस इज ग्लोबल वेरिएबल। एक बात और ध्यान रखो, ग्लोबल वेरिएबल जरूरी नहीं कि हमेशा टॉप पे दिया जाएगा, पर ये बहुत जरूरी है कि वो मेन सेक्शन में होगा। इट विल नॉट बी द पार्ट ऑफ एनीबॉडीज बॉडी, पहली चीज। दूसरी चीज, वो ऊपर भी हो सकता है, वो बीच में भी हो सकता है, वो कहीं भी हो सकता है, बट इट शुड नॉट बी द पार्ट ऑफ एनीबॉडी। लुक एट इट इज इन द मिडिल, राइट। ये यहाँ भी हो सकता है, मैं यहाँ पर एक वेरिएबल ले सकता हूँ p = 100, दिस इज ऑल्सो अ ग्लोबल वेरिएबल। क्यों है ग्लोबल? क्योंकि ये किसी बॉडी का पार्ट नहीं है, ये नॉन इंडेंटेड है, दैट्स व्हाई इट इज कॉल्ड ग्लोबल। a = 30, that will be considered global। So this is that these concepts needs to be very very clear to everybody, ठीक है, वरना it is going to confuse। और इस पे फंक्शन में बोर्ड एग्जाम्स में कोड मिलेगा, आपको आउटपुट बताना पड़ेगा। मैंने आपको भी एक एग्जांपल उसका छोटा सा ग्लिम्स दिया था, आगे भी देते रहेंगे। और ये एक्सरसाइज बहुत है, इसमें एक्सरसाइजेस जब तक बिल्कुल क्लियर नहीं हो जाएंगे आगे नहीं जाएंगे, ठीक है, क्योंकि ऐसा नहीं कि थ्योरी कवर करा रहे हैं, प्रैक्टिकल पॉइंट ऑफ व्यू से पढ़ा रहे हैं, हर चीज प्रैक्टिकली समझा रहे हैं, ठीक है, इसीलिए ये सब एक्सरसाइज हमारे लिए। हाँ सर, यहाँ पर जो हैशटैग ग्लोबल लिखा हुआ है सर, वो इनलाइन कमेंट होगा कि फुल लाइन कमेंट? कहाँ पर? Inline. ग्लोबल Inline comment. इनलाइन फुल लाइन का है, फुल लाइन होगा तो यहाँ से स्टार्ट होगा, ठीक है ना। हाँ ठीक है ना। हाँ अभी देखो, हाँ, अभी ये इनलाइन फुल लाइन के चक्कर में जिन लोगों को नहीं पता है, डू नॉट गेट कंफ्यूज, दैट विल बी एक्सप्लेन लेटर ऑन, दैट्स नॉट अ बिग इशू, फोकस ऑन द फंक्शंस ओनली, ठीक है। अब ये क्या हुआ, मैंने a की वैल्यू 30, दिस इज ग्लोबल, दिस इज लोकल। अब जब मैं इसको प्रिंट करूंगा तो आंसर क्या आएगा? 20।
और अब मैंने ये क्या लिखा, ये जब मैं ग्लोबल से लिखूंगा तो ये मुझे किसकी वैल्यू निकाल के 30. देगा, हाँ दिस इज गोइंग टू गिव मी 30, हाँ ग्लोबल, ये देखो मैंने ग्लोबल लिखा है एंड आई विल प्रैक्टिकली शो यू। अच्छा अब उसने आईडी भी निकाली, आईडी ऑफ द ग्लोबल इनसाइड दिस, आईडी निकाल के आप चेक कर लो इसकी आईडी क्या है। इसकी जो आईडी होगी वही आईडी किसकी होगी, इसकी होगी। इन दोनों की आईडी क्या होगी, सेम होगी, ग्लोबल, ग्लोबल ही के दे रहा है ना, दो अलग कॉपियां थोड़ी बना रहा है, सेम कॉपी है। वैल्यू ऑफ एक्स जब आप करोगे तो आपको आएगा 30, सम ऑफ ए प्लस एक्स करोगे तो आपको 50 आएगा। यानी आपने ग्लोबल और लोकल को ऐड कर लिया जबकि दोनों के नेम सेम थे। तो ये एक लॉजिक है, अगर किसी बच्चे से पूछा एक स्कूल में किसी टीचर ने कि अच्छा ठीक है हमारे दोनों वेरिएबल्स के नेम सेम है और तुम बताओ हमें उन दोनों वेरिएबल्स के नेम सेम भी है लेकिन उन्हें इंडिविजुअली एक्सेस करना है, उन दोनों को ऐड करना है या उनमें कोई भी मैथमेटिकल ऑपरेशन करना है, कैसे करेंगे? तो क्योंकि जब भी हम ए लिखेंगे तो ए जो है ना ग्लोबल को हाइड कर देगा, जैसे यहाँ हो रहा है। जब भी हम यहाँ पर a इक्वल टू 20 लिख रहे हैं तो ये a लोकल ग्लोबल लिखने से कोई फर्क नहीं पड़ेगा, ये a भी 20 होगा, ये a भी 20 होगा, 30 एक्सेस हो ही नहीं पाएगा अंदर ब्लॉक में। तो सर हम 30 को कैसे एक्सेस करें, क्योंकि हर बार लोकल वेरिएबल ग्लोबल वेरिएबल को हाइड कर देता है। अगर तुम्हें एक्सेस करना है तो उसका तरीका क्या है, ग्लोबल्स है, ग्लोबल्स फंक्शन के थ्रू ये काम करेंगे। पर ये आपकी टेक्स्ट बुक में कहीं नहीं दिया, ध्यान रखिए, मैं आपको पहले से बता दे रहा हूँ, आपकी टेक्स्ट बुक में ये सब चीजें नहीं दी हैं, ठीक है। लेकिन क्योंकि ये कॉन्सेप्ट्स के लिए बहुत जरूरी है इसलिए पढ़ाया जाएगा, ठीक है, चाहे दी हो चाहे ना दी हो, ठीक है। तो यहाँ पर आ गए, यहाँ तक हमने पढ़ लिया और अब हम लास्ट पढ़ेंगे और हमारा जो है हमारा जो लेक्चर है वो खत्म हो जाएगा। वेरिएबल लेंथ आर्ग्यूमेंट क्या है भाई? वेरिएबल लेंथ आर्ग्यूमेंट जब होता है कि जब आपके पास नंबर ऑफ फंक्शंस, जो आपके पास फंक्शन है उसमें आपके पैरामीटर्स की लेंथ डिसाइड नहीं है, फिक्स नहीं है। कभी आप 2 पैरामीटर की फंक्शन कॉल करते हो, कभी आप 4 पैरामीटर पास करना चाहते हो, कभी आप 10 पैरामीटर पास करना चाहते हो। तो आप ऐसा तो नहीं करेंगे कि आप एक ही फंक्शन के 7-8 तरीके के फॉर्म्स बनाएंगे। जैसे मल्टीप्लाई करना है, यहाँ पर देखो मल्टीप्लाई, अब 2 नंबर मल्टीप्लाई करना है, सो आई एम मेकिंग अ डेफिनेशन मल्टीप्लाई a, b, ठीक है भाई, समझ में आता है। लेकिन सोचो किसी को 3 नंबर्स को मल्टीप्लाई करना है, या सपोज करो उसे 4 नंबर को मल्टीप्लाई करना है एंड ही वांट्स टू पास 4 वैल्यूज इन द मल्टीप्लाई फंक्शन कॉल। तो आपके पास केवल एक ही रास्ता है कि आप 4 पैरामीटर वाली फंक्शन डेफिनेशन बनाओ, फिर 3 पैरामीटर वाली फंक्शन डेफिनेशन बनाओ, तो बहुत मुश्किल है, इट्स वेरी डिफिकल्ट। इन ऑर्डर टू सॉल्व दिस प्रॉब्लम, यानी जब आपको यहाँ पर कभी 2 पैरामीटर पास करने हैं, कभी 3 पास करने हैं, कभी 4, जैसे मैं मल्टीप्लाई कॉल लगाता हूँ 5,4, क्या होगा अगर मल्टीप्लाई कॉल में ये लगा दूं 2,3,4,5, क्या मेरे पास ऐसी कोई पैरामीटर है? यहाँ तो केवल 2 ही पैरामीटर हैं, तो 4, ये बाकी 2 कहाँ एडजस्ट होंगे, एरर हो जाएगी, ये तो एक्सेप्ट नहीं करेगा, तो हैंडल ही नहीं कर सकता। तो इस तरह की फंक्शन कॉल्स जिनमें आपकी पैरामीटर की लेंथ जो है वो वैरी करती है, तो ऐसे प्रॉब्लम्स को हैंडल करने के लिए पाइथन इज प्रोवाइडेड अ वेरिएबल लेंथ आर्ग्यूमेंट दैट इज कॉल्ड दिस, लुक एट दिस। So to solve this problem, this is what I have just narrated to you, and this is already given in the one line statement. What if we want to create a multiply function that can take any number of arguments? Sometimes 3, sometimes 8, sometimes 7, sometimes as per my choice. So this problem can be solved with the help of variable length arguments. And what is that? Is here. Look. So you have to put a asterisk before the parameter name, normal parameter, any parameter. Look at this, and normal calculation. और ये जो पैरामीटर होता है, look at this, ये मैंने आपको डेमो भी दिया था, मैं बता देता हूँ। जैसे मैंने ये बना दिया, मैं से कुछ भी लिख सकता हूँ। इसका टाइप क्या होता है? दिस इज ऑलवेज टपल, ठीक है। एंड यू नो हाउ टू डू द समेशन ऑफ ऑल द एलिमेंट्स एंड ऑल दिस, दिस इज वेरी सिंपल। ये आप ही कर सकते हैं, ये पॉसिबल है। नाउ इट इज पॉसिबल एवरी टाइम द वैल्यू इज गोइंग टू द आर्ग्यूमेंट्स एंड दीज आर कंसिडर्ड एज टपल्स। तो टपल बन जाएगा एक 5, 4, 2, 3 का एक टपल बनेगा एंड दिस विल बी हैंडल्ड। तो यहाँ पर जाके मैं इसका एक फाइनल डेमो देख के इस क्लास को खत्म कर दूंगा। लुक एट दिस, ये हमने यहाँ पर डेमो दिया, जस्ट होल्ड ऑन। बैच 245 का हमारा ये है, हमने एक कॉल आपको पढ़ाई थी, लुक एट दिस कॉल, लुक एट दिस कॉल, ये हमने कॉल आपको पढ़ाई थी। कौन सी कॉल? ये वाली कॉल, वेरिएबल लेंथ पैरामीटर डेफ ऐड, ये हमने लिखा है यहाँ पर प्रिंट टाइप ऑफ एक्स एक्चुअल डेटा। तो कॉल में पहले 3 पैरामीटर पास हुए, फिर इस कॉल में 5 पैरामीटर्स पास हुए। सो नाउ लुक एट व्हाट इज द आउटपुट, ठीक है। अब सबसे पहले मैंने इस कॉल को रन करा है। फर्स्ट ऑफ ऑल नीचे वाली कॉल को बंद कर दो तो मजा आएगा, ताकि आपको पता चले कि आप ऐसा भी कर सकते हैं, ठीक है। हाँ, एंड यू रन दिस कोड, लुक एट द आउटपुट, ये आ गया आपको। जब आपने यहाँ पर 2, 3, 4 पास किया तो x की वैल्यू टाइप ऑफ x क्या बता रहा है? लुक,
टपल, ठीक है ना। एक्चुअल डेटा रिसीव्ड, एक्स में क्या डेटा रिसीव हुआ, टपल के फॉर्म पे रिसीव हुआ, टपल आया, देखो पैरेंथेसिस इज देयर, सो जस्ट वेरी क्लियर दिस कॉन्सेप्ट इन योर माइंड। अब हमारे पास टपल है, सो यू नो हाउ टू ऐड द एलिमेंट्स ऑफ द टपल, इट्स वेरी सिंपल, सम इक्वल टू सम प्लस आई, वी कैन कॉल द फंक्शन लाइक दिस, look at this, let me comment this particular piece of code so that we will be on the safer side. Hold on. Hello. Sum equals to 9 and sum equal to 150. ऐसे आ गया. Now 2 plus 3 plus 4 sum equal to sum plus I and it is returning the value. So value वापस यहाँ पर के print हो रही है. So this is the story of the variable length parameter. क्या notice करना है? Single asterisk sign, and it will perform the way it is doing. So basically we have covered up to here and यहाँ तक आकर के हमारा lecture cover हो गया. जिसको जो समझ में नहीं आया होगा no problem, आप हमको WhatsApp कर दो and inform me. Kalams class को handle करें. Thank you very much for attending the class.